जी सर, मैं थक रही हूँ। Now you should take rest. यस सर, श्योर। एंड आई गॉट योर पॉइंट सर। रोशनी, आर यू गेटिंग टायर्ड? No, I am not getting tired. रोशनी, क्या आप थक रही हैं? नहीं, मैं नहीं थक रही। निधि तिवारी, आर यू गेटिंग टायर्ड? No, Roshnidi, I am not getting tired. क्या आप थक रही हैं? नहीं रोशनी, मैं नहीं थक रही हूँ। नम्रता से पूछ लो तुम। नम्रता दी, आर यू गेटिंग टायर्ड? Yes, I'm getting tired, Nidhi. क्या आप थक रही हैं नम्रता दी? हाँ, मैं थक रही हूँ। दीपिका, देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। जबलपुरी भाषा में फटियाना शब्द सुना है लेडीज आप लोगों ने? जी 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 जी। जिसमें सर, मैं यहाँ पे हॉस्टलर रही हूँ 5 साल, तो मेरे को शब्द समझ में आते हैं पूरे। Good. रोशनी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर घूमना? The verb for घूमना should be walk. निधि, sorry, नम्रता दीदी। नम्रता दीदी, what should be the second form of wonder? The second form of wonder should be wandered. Good pronunciation, Namrata. What should be the third form of wonder? The third form of wander should be wandered. Deepika, is he wandering? यस सर, ही इज वॉन्डरिंग। क्या वह फटिया रहा है? जी सर, वह फटिया रहा है। सब्जेक्ट बदल रोशनी दीजिए। जी, सब्जेक्ट चेंज। ओके। रोशनी, इज शी वॉन्डरिंग? Come again, दीपिका दीदी। Okay, no problem. Namrata will answer. Yes, she is wandering. नम्रता, रोशनी? क्या वह घूम रही है? हाँ दीपिका, वह घूम रही है। रोशनी? रोशनी से नहीं, निधि Is से they पूछ। okay, Nidhi? Is they wander? Come again, Di. Sorry, Are they wander? sorry. Yes, they Sorry, are. sorry. Question is wrong, Sorry. beta. Okay, Question is is he wrong. wander? Sorry. Yes. Okay, is he wandering? Sir, it will. Okay. Are they wandering? Nidhi? Yes, So Di. there you are. They are wandering. क्या वे घूम रहे हैं? हाँ दी, वे घूम रहे हैं। सर, ये आईएनजी के साथ ही आएगा? No, I am just giving you a random practice. गुड मॉर्निंग निधि। तिवारी को गुड मॉर्निंग बोलना शुरू करो, वो सो जाती
Good morning. Nidhi Di, is she wandering? Yeah. Sorry, Nidhi, you have to change the subject. यस हाँ. निधि निधि तिवारी, सबसे पहले तुम 3 कर दंड दो बेटा। अब तुम्हारे पास कुछ इंटरेक्टिव इडियम लिखे होंगे। Nidhi Di, is Reena wandering? 3 का Sorry. दंड दो बेटा। आर यू लिसनिंग निधि तिवारी? गिव मी 3D। 3 सेंटेंस बोलने हैं आपको। इडियम। इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस। अच्छा, इफ शी, अगर इसको नहीं मिला है तो चलो दीपिका, जस्ट फॉर नथिंग, इट इज नॉट ए दंड, यू नो वेरी वेल। चलो तुमसे शुरुआत करते हैं। ओके और सर। तुम जो बोलोगी उसको निधि रिपीट कर। निधि तुम, दीपिका तुम एक सेंटेंस बोलना, फिर एक नम्रता, फिर एक निधि पटेल, फिर एक रोशनी, और उससे बुलवाते ओके। जाएंगे। ओके सर। ब्रेक द आइस। शुभारंभ करें। ब्रेक द आइस, शुभारंभ करें। So there you are. Break the ice. You are. Super. So there. सर रिपीट करवाना है निधि। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। Work is worship. कर्म ही पूजा है। Work is worship. कर्म ही पूजा है। It is not working. ये कुछ जम नहीं रहा। It is not working. यह कुछ जम नहीं रहा। दीपिका अगला सवाल पूछ। निधि, what should be the another verb for घूमना? The another verb for घूमना should be I forgot. Namrita, what should be the another verb for घूमना? The another verb for घूमना should be roam. Tongue is not in class. Roshni, what should be the second form of roam? The second form of roam should be roam. Deepika Didi, what should be the third form of roam? The third form of roam should be roamed. Namrata, what should be the another verb for घूमना? The another verb for घूमना should be, I don't know. Nidhi, what should be the second another verb for घूमना? The another verb for घूमना should be loaf. Roshni, what should be the second form of loaf? The second form of loaf should be loafed. Deepika Tiwari, what should be the third form of loaf? Sorry, she is not Tiwari. She is Shukla. Before marriage, I am Deepika Tiwari, but not now. Sorry. Nidhi Tiwari, what should be the third form of loaf? The third form of loaf should be loafed. Come again, Nidhi. One more time, please.
third form of loaf should be loaved? Anybody? Nidhi, Deepika? what is loaf? Loaf is a noun. Namrita, what is the Hindi meaning of loaf? The Hindi meaning of loaf is घूमना. चलो आगे बढ़ाते जाओ. Keep asking. Deepika, what is the Hindi meaning of loaf? The Hindi meaning of loaf is सफर. सर ये फर्स्ट बार मैंने ये वर्ड ही सुना है, काफी न्यू है ये मेरे लिए. निधि तिवारी, what should be the Hindi meaning of loaf? The Hindi meaning of loaf should be घूमना. Nidhi di, what should be no. What is Hindi meaning of loaf? The Hindi meaning of loaf is bread का टुकड़ा. Sir, is it right? A loaf of bread. You can see on the screen. Okay. Deepika, what is this? Duster. Nidhi Patel, what is this? Sir, it's a loaf. Good. ये क्या है? यह क्या है? Sir, ये टुकड़ा है. This is a loaf of cloth. Loaf of bread. Okay. चलो दूसरे तरह से. Deepika, can you give me a loaf of bread? Yes, I can give you a loaf of bread. क्या मुझे तुम एक ब्रेड का पीस दे सकती हो? जी सर, मैं आपको एक ब्रेड का पीस दे सकती हूँ. नम्रता, can you give me a loaf of bread? Yeah, of course, I can give you a loaf of bread. नम्रता, क्या आप मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ब्रेड का एक टुकड़ा दे सकती हूँ. निधि पटेल, can you give me a loaf of bread? Why not? I can give you a loaf of bread. Thank you. Please complete the process, Namrata. क्या आप मुझे ब्रेड का एक टुकड़ा दे सकती हैं? क्यों नहीं नम्रता, मैं आपको ब्रेड का टुकड़ा दे सकती हूँ. रोशनी, can you give me a loaf of bread? Yes, I can give your a loaf of Sorry? bread. Sorry, come. Come again. Yes, I can give you a Sorry? loaf of bread. Correct. Complete the process. रोशनी, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकती हो? हाँ, मैं आपको ब्रेड का टुकड़ा दे सकती हूँ. निधि तिवारी, you can give me a
loaf of bread? Sorry, Sorry. Roshni. Come again. Can you give me a loaf of bread? Yes, Di, I can give you a loaf of bread. देखो क्या तुम्हारा आप मुझे ब्रेड जो गड़बड़ है वो कुछ और लिख रहा है। रोशनी का लिखा था लोफ की जगह लव एंड निधि का लिखा लोफ की जगह लॉट। क्या आप मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा दे सकती हैं? हाँ दी, मैं आपको एक ब्रेड का टुकड़ा दे सकती हूँ। सबका हो गया? नो as far as I think Neha is rest. नहीं, नेहा मालूम नहीं दिख रही है, 4 लोग दिख रहे हैं, तो आई एम रेस्ट। Yes, sir. Sir, you can give me a loaf of bread. Nidhi, Sorry, come again, please. क्या होगा फिर? Come again, please. You ओके, रोशनी, यू आस्क मी। रोशनी, Yes, sir. Sir, can you give me a loaf of bread? यस, ऑफ कोर्स, हियर यू आर। सर, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। दोस्तों, ये हम मिटाते मिटाते रुक गए। इस क्रिया का प्रयोग फोन में एक जगह होता है, मोबाइल में कभी बाहर गए हो? प्रदेश से कोई गया है? प्रदेश जैसे आप बाहर जाते हैं तो क्या शुरू हो जाती है? सर, रोमिंग लगने लगती है। roaming. वाह, गुड गुड। आप समझे ये किस लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था? आप घूमने जा रहे हैं बाहर तो वो रोमिंग लगने लगती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रोम। सर, ये लोफ को केवल ब्रेड के टुकड़े के लिए यूज किया जा सकता है। यस, जैसे नम्रता ने बोला लोफ ऑफ क्लोथ्स, वो रॉन्ग है सर। पीस ऑफ क्लोथ। जी जी। नेहा, कैन यू गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड? Yes, sir. I can give. Yes, sir. You can give me loaf of bread. Sorry, Neha. Thank you. Shivan, can you give me a loaf of bread, please? अच्छा, Shivang is disconnected. Deepika, can you give me a loaf of bread, please? Yes, sir. I can give you a loaf of bread. Namrata, can you give me a loaf of bread, please? Yes, sir. Here you are. Thank you. Have you written this? Yes, sir. I have written that. Nidhi, should I erase? Yes, sir. You should raise, please. अब ये अगला सवाल किसी से कर। But sir, it is not visible to us. That's. Neha, have you written the second one? Yes, I have written the second one. Should I raise? Yes, sir. You should read that. Sorry, Neha, I'm not. I'm Nidhi only. Okay. Okay, Roshni, have you written that?
Roshni, Yes, I have written that. should I erase that? Yes, you should erase that. Namrata Didi, have you written that? Sorry. Namrata Come Didi, again. have you written that? Yes, I have written that. Should I erase? Sure, you should erase. What was the last? Did I give you any interactive sentences, ladies, yesterday? So what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was I will try my best. That is, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. And Did I give you idiom? no, sir, idiom is rest. Okay. So firstly write down the idiom with yesterday's interactive sentence. Neha, which chapter is this sentence related? Sir, be present chapter is this related. Very good. अब तुम यही सवाल निधि तिवारी से पूछो बेटा. Nidhi Tiwari, which chapter is related this? Very good. This sentence is related should be present. Very nice. रोशनी से पूछो. Roshni di, this sentence is related to which part? Very good. This sentence is related to be present. Correct. अब रोशनी तुम्हें अगला सवाल पूछना है. क्या पूछोगी? Namrata Didi, what should be the subject? नहीं, this is wrong. शिवांग तुम पूछ लो बेटा. Nidhi Patel Didi. What is the subject in this sentence? He is the subject in this sentence. Deepika. वेट. एक बार हिंदी करके जाओ निधि के लिए. बेटा हिंदी. दीदी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का भी हिंदी कर. हाँ, शिवांग, इस सेंटेंस में कर्ता ही है, वह है. Deepika, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. Deepika, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. नम्रता, what is in this sentence? Is the main verb in this sentence. नम्रता, इस सेंटेंस में is क्या है? इस सेंटेंस की मुख्य क्रिया है. नेहा, what is an in this sentence? The an is a preposition. Conjunction. Okay. Roshni, what is an in this sentence? Shivang,
Shivang, what is an in this sentence? Didi, an is the article in this sentence. Didi, please complete the process. शिवांग, इसमें एन क्या है? दीदी एन आर्टिकल है। अमृता दीदी, नो, निधि तिवारी दीदी, व्हाट इज एप्पल? व्हाट इज एप्पल इन दिस सेंटेंस? बेटा एक मिनट रुकना। एप्पल, व्हाट इज एप्पल? एप्पल इन दिस सेंटेंस। निधि तिवारी दीदी। Apple is object in this sentence. अब निधि तुम यही सवाल दीपिका दीदी से पूछ, सेम टू सेम। Deepika di, what is apple in this sentence? Apple is noun in this sentence. Namrata, what is of in this sentence? Okay, Neha, what is of in this sentence? Of is conjunction here. Okay, didi. Namrata di. Okay. Of is a निधि preposition. पटेल से Nidhi di, what is of in this sentence? Of is preposition in this sentence. Complete Neha, please process. These में of क्या है? इसमें of preposition है नेहा। रोशनी, what is my eyes? So, अब ये बच्चे सिखाने की नहीं है। निधि म्यूट करना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा माइक ऑन था तो इको हो रही थी वॉइस। दीपिका, am I clearly audible? Yes, sir, you are clearly audible. Shivang, is my voice echoing? No sir, your voice is not echoing. Okay. अब हमने, तुम्हें भी पता है निधि, शिवांग को भी पता है कि अभी ये ग्रामेटिकल पॉइंट आया नहीं है इस बैच में। तो निधि तुम्हें जरूर पता होगा, शिवांग भी वहां तक पहुंचा था कि नहीं, आई डोंट नो। तो तुमसे पूछते हैं, सभी लोग अपने सीसी को ऑन कर लेना, स्पेलिंग सीसी में लिखी हुई नीचे आ जाएगी। और दोस्तों हम बता दें, अगर सीसी आपका तस्वीर के ऊपर आता है तो आप किसी भी को जरा सा टच करोगे तो वो नीचे ब्लैक स्क्रीन में वो नीचे चला जाएगा और बाकी लोग थोड़ा छोटे छोटे हो जाएंगे और दिखेंगे आप। जैसे अभी हमने अपने आप को अनपिन करके रखा हुआ है। पिन करते हैं तो हम बड़े में दिखते हैं और यहाँ राइट साइड हमें 4 लोग दिखते हैं, जो कि आपका लेफ्ट है। लेकिन अभी हमें लेफ्ट में फर्स्ट नंबर पे नेहा दिख रही है, नेहा इज विजिबल। सेकेंडली नम्रता इज विजिबल, थर्डली दीपिका इज विजिबल एंड फोर्थ मी। नीचे फर्स्टली निधि तिवारी इज विजिबल, सेकेंड रोशनी इज विजिबल, थर्ड शिवांग इज विजिबल एंड लास्टली निधि पटेल इज विजिबल एंड वन अदर। निधि पटेल के ऊपर वन अदर लिखा हुआ है, मतलब एक व्यक्ति कोई और, तो वो मैडम होंगी। या हम देखते हैं वहीं टच करके देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें सबके नाम दिख रहे हैं जो लोग मौजूद हैं। अदर को टच करने से दीपिका शुक्ला, कल्पना आशीष झा, नम्रता द्विवेदी, नेहा पटेल, निधि तिवारी, रोशनी पटेल, शिवांग दुबे।
अब हम उसी तीर के माध्यम से फिर बैक होके वापस आ रहे हैं। ऐसा आप भी चाहे तो कभी भी देख सकते। जहाँ वन अदर लिखा है उसको टच करेंगे तो आपको सारे नाम व्हाइट स्क्रीन पे दिखाए। चलिए, तो अभी हमने अपने आप को अनपिन करके रखा। आई हैव अनपिन्ड माई सेल्फ, आई हैव अनपिन्ड माई सेल्फ। ये जो डिवाइस है इसमें जब बहुत विनम्रता से बोलो तो सही लेता है, खूब चिल्ला चिल्ला के बोलो तो गलत ले लेता है। तो निधि, आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू निधि. Nidhi, what is my in this sentence? Sir, my is object in this sentence. अच्छा, तुम्हें भी मैं भी भूल गए। पहले मैं शिवांश के बाद उसके बाद अरे हाँ यार, जैसे निधि का माइक ऑन होता है वॉइस इको होना शुरू हो जाती है। शिवांग, व्हाट इज माई इन दिस सेंटेंस? Sir, my is possessive adjective in this sentence. दीपिका दीदी से भी पूछ लो, उनकी दीक्षा पूरी हो जाएगी। Deepika Didi, what is my in this sentence? My is possessive adjective sir और pronoun। देखिए दोस्तों, हम अभी इस चैप्टर पे नहीं पहुंचे हैं। जब हम चर्चा करेंगे वो हमने केवल तुमने चूंकि हाथ उठाया था इसलिए पूछवा लिया। निधि भूल गई थी, संयोग से शिवांग को याद रहा, उसने बता दिया। समय आने पर हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जब वहां करेंगे मुझे दिमाग में था बट मुझे लग रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए। ऑब्जेक्ट एक्सिस्टेंस नहीं आ रही अभी तक, दैट्स व्हाई। नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर, नेवर माइंड, नॉट एट ऑल। तो हम इस पे आगे चल के समय आने वाला है, वहां अच्छे से पूरे डिटेल में बताएंगे आपको। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अब ये आखिरी का, नेहा तुम पूछ लो निधि तिवारी से। तुमने ना सही जवाब दिया है ना निधि ने कोई उत्तर दिया। ओके जी तिवारी, व्हाट इज यस इन दिस सेंटेंस? अब निधि बेटा Come तुम again, दी। हाँ, वो कम अगेन तुमने बहुत ओके सही। निधि, व्हाट इज थम्बा स्कॉट थम थाम्बा, रुक जा बेटा। निधि पूछो। अच्छा, निधि पूछती नहीं है, ठीक है। रोशनी तुम पूछ लो। नेहा, what is ice in this sentence? थैंक यू। ice is a object in this sentence. नेहा, ice क्या है? The ice object है। कितने मजे की बात है, सब लोग एक्सटेंशन में इन दिस सेंटेंस तो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सब खा जाते हैं। कहीं पहले वाले ने खाया होगा, सब पीछे पीछे भेड़ चली जा रही है, सारी भेड़ गड्ढे में। नेहा, इस सेंटेंस में ice क्या है? The sentence में ice object है। अब अगला सवाल कोई पूछ सकता है तो पूछिए। Can anybody What is the guess? Hindi meaning of idiom? अरे उसी को पूछ लेने को। शिवांग पूछो, तुम सही ढंग से पूछते हो। Can anybody guess the Hindi meaning of this idiom? Yes, Shivang, Yes, I can guess the meaning of this sentence. Hindi। Okay, Neha, please. Okay. वह मेरी आंखों का तारा है। एक प्लेन राउंड खेलते हैं, दीपिका से शुरू करते हैं। नो चेंज एज इट इज। He is an apple of my eyes। वह मेरी आंखों का तारा है। शिवांग। He is an apple of my eyes. वह मेरी आंखों का तारा है। बता दीदी। He is an apple of my eyes।
वह मेरी आंखों का तारा है। निधि पटेल। He is an apple of my eyes. वह मेरी आंखों का तारा है। रोशनी। ही इज एन एप्पल ऑफ माई आईज, वह मेरी आंखों का तारा है। निधि तिवारी। He is an apple of my eyes. वह मेरी आंखों का तारा है। नेहा दी। He is an apple of my eyes. वह मेरी आंखों का तारा है। Who is rest? Nobody is rest. चलो, निधि तिवारी और नेहा को छोड़कर बाकी सबने उच्चारण पे ध्यान दिया। इन लोगों का बाद में सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। कोई चीज जब हम 27 साल से गलत बोलते आ रहे हैं तो एक दिन में सुधार हुई नहीं। तुम लोग कभी आजमा के देखना, किसी हिंदी मीडियम के बच्चे से पूछना, बेटा ए फॉर क्या होता है, तो वो बोलेगा ए फॉर एप्पल। किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से पूछना ए फॉर क्या होता है, बोलेगा ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉय। और हिंदी मीडियम वाले से पूछना बी फॉर क्या होता है, बोलेगा बी फॉर भाई, बी फॉर भाई, बड़ी भाई, छोटी भाई, बी फॉर भाई। तो ये हम बीच बीच में आपको थोड़ा सा इसको हंसाते खिलखिलाते रहते हैं और आप मुस्कुराते देते हैं। तो लेकिन जब आप पे कोई कहीं अच्छी उस जेंट्री में जाओगे और आप पे उच्चारण गड़बड़ हो और लोग हंसेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी कोशिश करते रहिए, आप अपनी करते रहिए। दोस्तों, वैसे तो हमने अभी आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में ना कुछ बताया है ना कुछ सिखाया है, फिर भी यहाँ पे जो लोग जितने मौजूद हैं और एक कॉमन सेंस के चलते आप यहाँ सब्जेक्ट बदल के देखिए, उसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने आप बदलेगा। तो वो आपसे गलत भी हो सकता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बिकॉज मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। तो आप सब्जेक्ट बदलिए, अपने आप बदलेगा। अगर आप सही नहीं लगा पाए तो मैं मदद करूँगा, लेकिन मदद करेगी शिवान करेगा। I am ready. Rohan is an apple of her eyes. रोहन उसकी आंखों का तारा है, उनकी आंखों का तारा है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हर उसकी मम्मी भी हो सकती हैं, चाची भी हो सकती, दादी भी, कोई भी हो सकता है। स्त्री के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क इज वीक। नम्रता, am I audible? Sir, you are audible but not visible. My network is strong. Okay, the speed is low.